Hello everyone. So, can your hotel stock double if you have already invested in a hotel stock or you're planning to invest in a hotel stock? So, this video can be useful for you. In this video, we will be analyzing hotel industry, how the hotel industry's trend is going, and we will be comparing it with the last hotel industry cycle, which started approximately in 2004 and lasted till 2008. What were the different companies doing? And what was the different industry viewers, like the companies which present us the view about the industry, they were saying about that industry. So because what people are seeing, like everyone is coming and they're saying like demand is very high in hotel industry currently and the supply is low. Okay, that's perfectly fine. Demand is high and supply is low, and we are in an upswing of hotel industry. But where are we in the cycle? How long this cycle can be there? If I'm investing today, I have not invested 2 years back because this current cycle for the hotel industry, which started after COVID, second wave, majorly like in 2022. So after 2022, we are where we are standing currently in the cycle. Are we near the end? Are we halfway through? Or it just has started? All those things we'll be seeing with the lens of the last cycle, 2004 to 2008. That's what we thought of. So please watch the whole video. This video is going to be very interesting. As a disclaimer again, any stock that will be discussed will not be a buy sell recommendation here. So let's start. Hotel industry overview. So as I told you, like last cycle that started in 2004. So what these are uh, some of the reports that were saying about the hotel industry. They were saying like the hotel industry room night grew approximately 18%. So they are like the demand is growing at 18% in the left side. If you can see the left picture, it says the demand is growing at 18%, while they say the current supply of hotel rooms much too small. So this is what the scenario in currently also. If you go to YouTube or if you go to Google and type hotel industry overview, you'll see the same type of commentary, like the demand is growing at this much percent, the supply is growing at this much percent, and then there's a demand supply mismatch, and this can continue for this many years, all those things they're saying. So that's the same thing we started hearing in 2004 also, right? So they're saying like there will be like 18% demand, and then there will be 65 to 80,000 rooms will be needed. And while the industry can add only 35 to 40,000 room that are like in different stage of execution in the next 5 years, like maybe some are कुछ बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, कुछ बन के तैयार हैं उनमें रिनोवेशन होनी है, all those things होते हैं, right? So this is a supply demand analysis where we will be seeing कि occupancy level उस time पर क्या था, 2004 started, and then we will see through the cycle 2004 से 2008 तक क्या क्या occupancy level रहे होंगे इंडस्ट्री में, राइट? सो बैंगलोर में जैसे कि हमेशा लाइक बैंगलोर जो है, बैंगलोर सिटी जहाँ पर ऑक्यूपेंसी सबसे तेजी से बढ़ती है और सब तेजी से घटती भी है. दैट्स व्हाट द लास्ट साइकिल टोल्ड अस. इट्स लाइक 2004 में वहाँ पे ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी अप्रैल तो अगस्त में 80% हो चुकी थी, राइट? And then when we see the end of the cycle, so we will see this the fastest to go down was Bangalore itself, right? So this is a general idea. Uh, like now we saw like 2004 में क्या था, and 2006 में then again some of the industry research report that was saying like there is going to be a major shortage of room for next 3 to 4 years. 2006 में खड़े होकर, so like हमारी 2004 में cycle start हुई, 2006 में आकर some of the company like research reports are saying कि 3 4 years तक next time शॉर्टेज रहेगी इंडस्ट्री में रूम्स की. सेम टाइम लाइक इफ यू कंपेयर 2022 में हमारी करंट साइकिल स्टार्ट वी आर स्टैंडिंग एट 2024, एंड द सेम थिंग वी आर स्टिल हियरिंग कि अगले 3 4 5 साल तक रहने वाली है. कैन इट हैपन? विल सी इन दिस वीडियो आगे जाके कि क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन ऑब्वियसली दे वर रॉन्ग. अब नाउ वी कैन से कि लाइक आई हैव हाइंडसाइट बाइस, और मेरे पास हाइंडसाइट इंफॉर्मेशन है कि 2008 में देयर वाज अ जीएफसी लाइक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस होगा जिसकी वजह से रूम डिमांड कम हो गया, ऑल दोस थिंग्स. बट in a nutshell, those many of the industry research report, many of the analysts, many of the portfolio managers, they would have gone wrong. उन्होंने वो सोचा होगा कि अगले 3 4 साल तक साइकिल चलेगी, और साइकिल नहीं चली. साइकिल ended in next 2 years. So what are the points, right? So
दिस इज अगेन ऑक्यूपेंसी। पिछले वाले में जो हमने देखा था वो केवल 2004 का था। दिस इज ग्राफ, थोड़ा आपको शायद बड़ा करके देखना पड़ेगा अपने स्क्रीन में। ओके, माय स्क्रीन कैन आल्सो बी एनलार्ज्ड। सो आप देखें ऑल इंडिया लेवल पे 2004-5 में जब साइकिल शुरू हुई, यहाँ से हमारा ऑक्यूपेंसी रेट 63.6, 64.1, 66.8, 69.3। जब मेरी साइकिल पीक की है नेक्स्ट ईयर इट गॉट ड्रॉप 63.1 हो गया। सो अगर मैं डेटा देखता हूँ, सो ग्लोबली अगर आप देखेंगे ग्लोबली कहीं पर भी 70-72%, दिस इज द ऑन एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट्स। जब किसी होटल इंडस्ट्री में आपके ऑक्यूपेंसी 60-70-72% आ जाते हैं, दिस इज द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ओवरऑल लाइक इन अ कंट्री। किसी एक पर्टिकुलर होटल के 75% या एक पर्टिकुलर सिटी में, जैसे बैंगलोर की बात करते हैं, बैंगलोर लाइक 79.8% वहीं पर ही था, right? So Bangalore in a particular city or in a particular industry, it can be पर्टिकुलर सिटी में या एक पर्टिकुलर होटल के लिए ऑक्यूपेंसी रेट इससे ज्यादा हो सकते हैं, बट ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट जब 70-72%, दैट्स द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रेट व्हिच वी हैव सीन। अगर आप जाके देखेंगे तो कई सारे होटल्स में नाउ डेज ऑक्यूपेंसी रेट्स हैव ऑलरेडी रीच 70-75%। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, किसी भी होटल का जो टोटल रेवेन्यू है वो होगा उसका एवरेज रूम रेट मल्टीप्लाइड बाय द ऑक्यूपेंसी रेट। सो जब भी होटल में अप साइकिल शुरू होगी, होटल इंडस्ट्री की अप साइकिल शुरू होगी, तो उसका ऑक्यूपेंसी रेट जो होगा वो कम होगा और उसका एवरेज रूम रेट भी कम होगा। सो देयर वाज टू फैक्टर्स विल मल्टीप्लाई, आपका रूम रेट भी बढ़ रहा होगा और आपका ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ रहा होगा। Till now, we have reached the peak of approximate peak of one of the factors like occupancy का peak हम 2022 से हमने शुरू किया है 2024 से। तो यहाँ से आई डोंट सी कि यहाँ से occupancies में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि होटल्स की ऑक्यूपेंसी 80%, 85%, 90% हो जाए। टू बी वेरी वेरी श्योर, हम 85-90% होटल्स की ऑक्यूपेंसी नहीं होगी। दिस इज द पीक जो 70-75% आपने देख लिया, 1 और 2 परसेंटेज में भी हेयर एंड देयर। अब जो हो सकता है रूम रेट इंक्रीज हो सकता है यहाँ से मे बी गोइंग फॉरवर्ड, बट दैट विल बी लाइक एक पार्ट होगा उसका, राइट? ऑक्यूपेंसीज तो नहीं होने चाहिए। हिस्टोरिकली लास्ट 20-25 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ है। सो विच एवर कंपनीज, होटल कंपनीज यू वुड हैव बीन investing, you need to look at through those lenses. आगे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अभी देर विल सी कि इसके बाद क्या हो। दिस इज द सेम इंफॉर्मेशन लाइक एवरेज रूम रेट एंड ऑक्यूपेंसी, इट्स पिक्टोरियल फॉर्म में है। सो देख आप देख सकते 2004 से 2005 के बीच में यहाँ पर रूम रेट भी बढ़ा और ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग टोटल रेवेन्यू में दो फैक्टर काम कर रहे होते हैं, अभी दोनों बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक वी हैव रीच्ड द पीक ऑफ द ऑक्यूपेंसी फॉर द होटल फैक्टर। नाउ अभी किसी एक पर्टिकुलर होटल में कुछ और फैक्टर प्ले कर सकते हैं, मे बी कहीं पर कोई होटल डे लेवरेजिंग कर रहा होगा, बिकॉज जब अप साइकिल होती है सम गुड होटल स्टार्ट वेल मैनेज, आई वुड से वेल मैनेज होटल्स दे वुड से कि अच्छा अप साइकिल के टाइम पे मैं डी लेवरेज कर लूं, क्योंकि लो साइकिल में तो एक बार काम होना शुरू हुआ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू पे द इंटरेस्ट। मैं इतना सारा इंटरेस्ट कैसे दूंगा जो मैंने इतना सारा लोन ले रखा है, बिकॉज इट्स अ केपेक्स हैवी बिजनेस, राइट? देन व्हाट आई डिड वाज लाइक हमारे जो सबसे पुराने लिस्टेड होटल कंपनीज थे, इंडियन होटल एंड ईआईएच होटल, आई वेंट बैक एंड उनके एनुअल रिपोर्ट्स एंड इनके में जाके मैंने वहाँ के उनके जो रेवेन्यू ग्रोथ थे और उनके रेवेन्यू का डेटा एंड उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, आई थॉट ऑफ जस्ट पुट। So 2003, 2004, this is like the cycle started. You can see कि 2699 crores का रेवेन्यू उन्होंने 2003, 2004 में किया। वहां से 24% का रेवेन्यू ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, 29% उसके अगले साल, 45% उसके अगले साल, एंड देन 12%। इट सीम्स लाइक द इसके 2007, 2008 वाज द लास्ट ईयर, एंड देन 8, 9 के बाद तो इट स्टार्टेड डी ग्रोइंग फॉर लाइक एटलीस्ट 1 or 2 years। लेकिन द थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू कि आप देखें कि दिस ये जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है। तो इट लाइक अगर मेरा रेवेन्यू 24.9 लाइक 25% से ग्रो किया है, बट मेरा जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो 76% से ग्रो करा है, 76.6 लाइक 77%। 29% मेरा रेवेन्यू ग्रो करता है, 100% मेरा 92% मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो करता है। देन 43%, 74%। धीरे 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 ऑपरेटिंग लेवरेज वो कम होती चली जाएगी। इट्स लाइक
दैट्स समटाइम अदर 12% से मेरा ग्रो करता है रेवेन्यू, एंड देन 22% से मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो करता है। दिस इंडस्ट्री हैज अ हाई ऑपरेटिंग लेवल्स, बिकॉज अगर मेरा एक रूम में मैं जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा हूँ, अगर मेरे होटल में सपोज 10 रूम्स हैं और मैंने अपने को सर्विस देने के लिए सपोज 5 एम्प्लॉयज को रख रखा है, सो जो मेरे होटल की ऑक्यूपेंसी है अगर वो बढ़ जाती है, अगर 2 कमरे खाली रहते हैं तो मैं 5 लोग फिर भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरे यहाँ 5 कमरे में लोग आते हैं तब भी 5 लोग सर्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर 8 लोग हैं, मे बी आई हैव टू एम्प्लॉय वन मोर, मेरे यहाँ एक और बंदा मेरे को रखना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि जब मेरा रेट भी बढ़ेगा, एवरेज रूम रेट भी बढ़ेगा, तो उतने ही लोग, आई एम नॉट गोना इंक्रीज कि मेरे होटल की जो स्टाफ है उसकी सैलरी 25-30% से, लेकिन मेरे रूम रेट बढ़ जाते हैं, बिकॉज what happens कि in up cycle the room rates are when the demand is more, supply is less, तो उस हिसाब से बढ़ते हैं। तो सिमिलरली जब मेरे डाउन साइकिल आती है तो मैं स्टाफ की सैलरी कट भी नहीं करता हूँ, बट मेरे रूम रेंट घट जाते हैं ओवरऑल द इंडस्ट्री, राइट। सो दैट इज समथिंग हैपन। सो अगर आपका रेवेन्यू जो है वो 29% से बड़ा है, तो 92% ऑल दीज थिंग्स, रेवेन्यू से बहुत तेजी से मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता है। टैक्स के बाद के फिगर्स मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि टैक्स डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज ने पीछे कितना टैक्स दिया रहेंगे, ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन, राइट। So then we'll see कि what the management was talking about around that time. अगर मैं इंडियन होटल में 2004 मार्च यानी कि 2003 2004 का जो ईयर उनका रहा होगा, वो जो है, तो दे वर लाइक कि इफ यू रीड दिस ऑक्यूपेंसी कंटिन्यू देयर अपवर्ड ट्रेंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटी एंड लीजर डेस्टिनेशंस आफ्टर 3 ईयर गैप फॉर इंडिया। पिछले 3 साल में होटल इंडस्ट्री के लिए ऑक्यूपेंसीज नहीं बढ़े थे 2004 3 4 से पहले जो था। ऑब्वियसली उस टाइम हमारा .com बबल बस्ट हुआ था, देन वी हैड हमारा ट्विन टावर ब्लास्ट हुआ यूएस में सितंबर 2001 में भी, दैट वाज द डेट इफ आई एम राइट। सो ऑल दोस थिंग्स हैपन जिसकी वजह से ट्रैवल जो था वो कम था, ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड देन 2003-4 में जब साइकिल स्टार्ट हुई, तो वजह से कि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ गैप हमारा ऑक्यूपेंसी और जो हमारे रेट्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, राइट। फिर नेक्स्ट ईयर में भी उनका देखिए, आप कहते हैं कि एवरेज रूम रेट जो है मेरा वो 24% बढ़ गया, लाइक 24% बढ़ा, 75% टोटल इंक्रीज इन रूम इनकम। So again, there's like with the thing which we have talked, they have, these companies have high operating leverage. That's what we have talked like. So then 2008 again, while the occupancy rate ratio is 75 to 80%. So that's what I was discussing from the beginning कि भाई अगर आपका ऑक्यूपेंसी जो है 75-80 होता है, इट इज अ साइन कि यहाँ से ऑक्यूपेंसी आपका नहीं बढ़ेगा। लास्ट साइकिल में भी यही हुआ, 75-80 वाज द हाईएस्ट आपका ऑक्यूपेंसी फॉर फ्यू होटल। ओवरऑल इंडस्ट्री जब आप इंडिया लेवल पे देखोगे तो ऑक्यूपेंसी आपका और 70-72, और ग्लोबली कहीं ऐसा नहीं हुआ है। ग्लोबली जो आपका एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट है वो 70 के अराउंड ही रहेगा, 70-72, और उससे कम जाएगा कि साइकिल डाउन में है, साइकिल अप में है, लेकिन आपको उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हमने एक चीज कंप्लीट करी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि 70, दिस इज FY 2008 में जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है, 75-80% हो गया था, राइट। रूम रेट्स जो है उनके वो इंक्रीज है कि वहां से रूम रेट स्टिल कैन इंक्रीज, लेकिन ऑक्यूपेंसी तो नहीं होता है वहां से। दैट्स व्हाट वी हैव सीन। दिस इज द सेकंड होटल दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस, लाइक जिनके डेटा अवेलेबल था, और इनका डेटा थोड़ा पहले से अवेलेबल है, सो आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग इट आउट। सो आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे सेम 3-4 अगेन द साइकिल स्टार्टेड, उसके पहले रेवेन्यू डाउन डाउन डाउन, रेवेन्यू वाज डिक्रीजिंग। सेम वे अगर रेवेन्यू डिक्रीज देखिए 17% से किया है, तो 53% से मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्रीज होता है, 1-2% से 22%, सो इट्स सेम, राइट। देन अगेन 3-4 में भी यहाँ पे उन्होंने कुछ कैपेक्स वगैरह किया होगा, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। सो रेवेन्यू ग्रोथ 43%, मेरा पीपीटी 113% से ग्रो करता है, 28%, 344%। सो यहाँ पर अगेन कुछ कैपेक्स एंड ऑल के फिगर्स हो सकते हैं अगेन। सो लेकिन बट द पॉइंट इज दिस कि इट्स लाइक इंडस्ट्री जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज और ऑपरेटिंग डी लेवरेजिंग बहुत फास्ट होगी आपकी। अगर आपके रूम रेंट घट जाते हैं एकदम से, आप अपने स्टाफ की सैलरी और अपना ओपेक्स नहीं घटा सकते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग, अगर आपकी ऑक्यूपेंसी घट जाती है, और is it like in the up cycle your occupancy and your room rate will increase, in the down cycle at the same time your occupancy and rates both will decrease, so that will be like a double whammy for you in any hotel कि आपके रूम रेट्स और ऑक्यूपेंसी दोनों कम हो गए हैं,
जिसकी वजह से आपके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा, बट उतनी जल्दी आप अपना कॉस्ट कम नहीं कर पाओगे, राइट। आप अपने लाइट्स नहीं बंद कर सकते, होटल के एसीज बंद नहीं कर सकते, आपको जो भी अगर कहीं लीज पर होटल लिया है, आप लीज वाले को कुछ नहीं बोल सकते, आप अपने स्टाफ की सैलरी कम नहीं कर सकते। ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर, राइट। सो EIH का अगेन सेम, EIH में 2023 2003 का जो उनका था, उन्होंने बोला कि भाई मेरे लास्ट ईयर के तो है ही 55%, ये है मार्च 23 यानी कि 2002-2003, विच वॉज द लास्ट ईयर फॉर द डाउन साइकिल। यहाँ से हमारी अप साइकिल इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी। सो ये कि वही मेरी ऑक्यूपेंसी जो थी वो सेम 55%, साइकिल स्टार्ट हुई है तो ऑक्यूपेंसी 55% थी, बट जब साइकिल पीक हुई है तो ऑक्यूपेंसी इट वाज अप्रोक्सीमेटली 70-75% फॉर द होटल, राइट। So this is how it's like one of the easiest parameter, like you can see कि यहाँ से occupancy नहीं बढ़ेंगे, रूम रेट्स बढ़ सकते हैं। That's all. And I believe like room हमारा occupancy 2 साल में हमारी पीक कर गई है। We are somewhere in the middle of the cycle, hotel cycle के, ठीक है। So then EIH hotels में again next year 2004 में they said कि मेरी occupancy 61% हो गई है। 2005 में उनकी ऑक्यूपेंसी 67% हुई है, राइट। 2005 ऑक्यूपेंसी गॉट 67%, 33% increase in RevPAR, so revenue per available room. RevPAR is nothing but it is like more of occupancy multiplied by your average room rate. So कितनी आपके होटल के रूम्स फिल हुए हैं, और उसके बाद कि आपका एक रूम का एवरेज रेट क्या है, उसमें उनका मल्टीप्लाई करो तो रेफपार आएगा। सो उनका रेफपार जो है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो 33% से इंक्रीज हुआ, right? अगेन इन द नेक्स्ट ईयर दे स्टार्टेड लाइक उनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है उन्होंने नहीं दिया अपनी कमेंट में, एनुअल रिपोर्ट्स में, बट स्टिल लेवल है कि मेरा रेफपार इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो रेफपार 28% से मेरा रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम रेफपार विच इज मेरा 28% इंक्रीज हुआ, ऑल्दो इट वाज लेसर देन 2005 बट स्टिल द रेफपार वाज इंक्रीजिंग, right? It's like 67%. So we can assume like few percentage points occupancy increase हुई होगी, and then few percentage point होगी the rate increase हुआ होगा। Again 2007 the RevPAR got increased by 32%। 2008 में उन्होंने अपने annual report में नहीं लिखा, I'm not very sure, but they have not given the percentage. But what I feel is like somewhere, जैसे कि हमने इंडियन होटल में भी देखा था, वहाँ पे रेवेन्यू में like 2008 में रेवेन्यू was came only about 12% growth. So management may have seen what is coming, or maybe the demand was slowing, so they avoided this thing. I'm not sure it was intentionally or what, but they didn't give in the presentation जहाँ पे annual report में the same section में they were giving, they didn't give this information. So 2008 में, and then 2009 suddenly they have written like occupancy average room rates continue to fall. So 2009 में everything fell, and 2008 में उन्होंने देखा, 2008 में उन्होंने वो डेटा नहीं दिया। So what we have seen here till here is like uh, occupancies at the bottom of the cycle जो होंगे वो 55-60% से स्टार्ट होंगे, मे बी दैट्स व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड टाइम ऑल्सो। आप जाके देख सकते हैं 2022 में जब हमने स्टार्ट किया था, द मैक्सिमम द ऑक्यूपेंसीज कैन गो ओवरऑल कंट्री एज ए लाइक कंट्री के लेवल पे अगर आप देखेंगे 70-72%, इससे आगे ऑक्यूपेंसी नॉर्मली नहीं जाते हैं, पिछले 25 सालों में नहीं गया, और ग्लोबली भी यही एवरेज है। सो ऑक्यूपेंसी इसके आगे भी नहीं जाएंगे, रूम रेट्स कैन कंटिन्यू टू ग्रो फॉर सम टाइम। सो आपने एक लेग ऑफ द जो हमारा है टोटल रेवेन्यू का, वो जो है हमारा यहाँ से होटल इंडस्ट्री कांस्टेंट हो जाएगा, और दूसरा लेग नहीं बढ़ेगा यहाँ से। सो जो होटल इंडस्ट्री के मल्टीपल्स भी आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में क्या हुआ है कि मल्टीपल्स जो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गए हैं, मे बी कुछ 75-80 के मल्टीपल पर पहुंच गए हैं होटल स्टॉक, यहाँ से मल्टीपल्स एक्सपेंड नहीं होंगे, यहाँ से केवल और केवल आपका रेवेन्यू ही इंक्रीज हो सकता है। आपका जो पी में जो है ना, आपका प्राइस टू अर्निंग में आपको पी रेशियो इंक्रीज नहीं होगा आपका, आपको केवल और केवल अर्निंग्स का जो है वही आपका इंक्रीज हो सकता है। दिस में भी अगेन कुछ होटल ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी भी अपने पेयर्स के कंपैरिजन में सस्ते मिल रहे हो, या फिर कुछ वो डी लेवरेजिंग कर रहे हो, कुछ उनमें अलग ट्रिगर हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इंडस्ट्री। यहाँ से पी एक्सटेंड नहीं होगा होटल्स का, रेवेन्यू में और अर्निंग्स में ग्रोथ जो भी होगी उनकी वो रूम रेट की वजह से होगी, और वो जो नए रूम्स ऐड करेंगे अगेन, बट दैट विल बी देयर। सो
आप खुद वैसे भी देखेंगे, अगर आप चेक करेंगे, मेनी ऑफ द होटल्स दे हैव करेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 10%, 15% or 20% from their peak, which is also, which indicates like जो होटल इंडस्ट्री के tailwinds थे, they're slowly like coming down. Like tailwinds, I'm not saying कि now होटल इंडस्ट्री में headwinds आने वाले, but I'm like कि जो उनके tailwinds थे कि उनका they started with maybe 20-30 के पी से, and then 70-80 तक भी कुछ चले गए हैं। द बेटर मेट्रिक्स कैन बी ईवी टू इबिटा, जिसमें कुछ स्टॉक मैंने देखा है, देर लाइक मोर देन 30 ऑल्सो ट्रेडिंग ईवी टू इबिटा बेसिस में। ईवी टू इबिटा इसलिए ले रहा है क्योंकि होटल में दे हैव सब्सटेंशियल डेट है, जहाँ पे उनकी इंटरप्राइज वैल्यू लेना ज्यादा बेटर है एबिटा के साथ कंपेयर करने के लिए, राइट। सो आपके पास जो भी होटल स्टॉक हो, आप एक बार जाकर देखिए इसका कितना रूम रेट ग्रो कर रहा है, कितने किस स्पीड से वो सप्लाई ग्रो कर रहा है, व्हाट आर द ट्रिगर्स अर्निंग्स में। अगर लीनियर ग्रोथ होने वाली है आपके होटल में, लाइक दे हैव ऑलरेडी डे लेवरेज, कोई होटल ऐसा हो सकता है जो बोलेगा अच्छा मेरे पास तो डेट है ही नहीं। अगर आपको ऐसा होटल कोई मिल रहा है जो बोल रहा है मेरे पास डेट है ही नहीं, और मैं अपने कैश से करूंगा 10%, 12%, मैं 10% पे अपनी इन्वेंट्री ऐड कर रहा हूँ, और मेरा रूम रेट इतना से ऐड होगा, लाइक दे वुड बी सेइंग भाई 15% से मेरा रेवेन्यू ग्रो करेगा। सो वो होटल कंपनी 15% से ज्यादा से ग्रो भी नहीं करेगी, वो होटल स्टिल फॉल नहीं करेगा, ड्रास्टिकली तो फॉल नहीं करेगा बिकॉज दे डोंट हैव डेट। लेकिन एट द सेम टाइम वो होटल स्टॉक आपका ग्रो भी नहीं करेगा, राइट। मे बी जब साइकिल यहाँ से डाउन टर्न लेगी, सो बाकी के होटल स्टॉक अगर 50% गिरेंगे तो ये 20% पर ही रुक जाएगा। बट आप अपने होटल में चेक करिए, जो भी अपने होटल स्टॉक किया हुआ, कि क्या क्या मेरे होटल स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कितना डेट है, कितने से वो नई सप्लाई ऐड कर रहा है, रूम रेट कितना ग्रो कर रहा है। दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन आप दोबारा इस वीडियो पर आए और देखें कि आज के टाइम में वो कहाँ स्टैंड करता है इस साइकिल के हिसाब से, राइट। तो ओवरऑल इंडस्ट्री, आई थिंक ऑक्यूपेंसीज हैज पीक्ड, हैव पीक्ड। यहाँ से ऑक्यूपेंसीज नहीं बढ़ेंगे, रूम रेट बढ़ सकते हैं फ्यू ईयर्स, few years, maybe like 1 or 2 years. We are already, as I believe, we are already covered 40-50% of the cycle. Maybe 40 to 60% हो सकता है, 60% भी कवर कर लिया हो, बट नो वन नोज एग्जैक्टली कि हम कहाँ पर हैं। बट ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि अगर मेरे को 200-250 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करनी है, सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली कवर समवेयर अराउंड 120 to 140, 150 किलोमीटर। कितना स्टीम उसमें लेफ्ट है, ये आपको जाके देखना है, एंड फिर अपने होटल स्टॉक को दोबारा एनालाइज कीजिए, दोबारा आकर ये वीडियो देखिए, दैट मे बी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, बताएं आपके पास कौन सा होटल स्टॉक है। वी ऑल्सो ओन वन होटल स्टॉक, सो लेट्स सी कि क्या होगा। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट।